زمانہ تھا اورنگزیب عالمگیر کا، ایک ایسا دور جہاں تخت و تاج کی شان شوکت تھی، لیکن اسی کے ساتھ ایک روحانی روشنی بھی تھی جو زمین سے آسمان تک اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ تاج و تخت کی چمک میں ایک شہنشاہ کا غرور تو تھا، مگر دل کا سکون کہیں گم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت میں کئی صوفی بزرگ اپنی روحانی طاقت اور عشق الہی سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بزرگ تھے حضرت سید جین الدین شیرازی، جن کا ذکر آج تک لوگ عزت سے کرتے ہیں۔ حضرت سید جین الدین شیرازی کا تعلق ایک روحانی خاندان سے تھا۔ ان کا جنم ایران کے شیراز میں ہوا۔ بچپن سے ہی علم کی تلاش میں مشغول رہے۔ جو بھی علم حاصل کیا اسے روح کی گہرائی میں اتار لیا۔ وہ علم جو صرف دماغ کو نہیں، دل کو روشن کرتا ہے۔ بڑے ہو کر روحانیت میں ایسا مقام حاصل کیا کہ لوگ دور دور سے ان سے مل کر دعائیں لیتے۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا اور لبوں پر ہر وقت ذکر الہی۔ اورنگزیب ایک شہنشاہ تھا، ایک ایسا شہنشاہ جو دنیا کی ہر نعمت رکھتا تھا، لیکن ایک چیز جو اس کے پاس نہیں تھی وہ تھی دل کا سکون۔ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ، لیکن راتوں کو نیند اس سے کوسوں دور رہتی تھی۔ ایک دن اس نے سنا کہ ایک صوفی بزرگ ہیں جن کے در پر جو بھی آتا ہے مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک فقیر کے پاس وہ طاقت ہے جو بادشاہ کے پاس نہیں؟ اورنگزیب نے اپنے دربار میں سوال کیا۔ درباریوں نے کہا، حضور، جہاں شاہی طاقت کا زور ختم ہوتا ہے وہیں سے روحانی طاقت شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ اورنگزیب نے تحقیقات کا حکم دیا۔ اس کے خاص بندوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جا کر دیکھیں کہ حضرت جین الدین شیرازی میں ایسا کیا خاص ہے۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو ایک الگ ہی منظر تھا۔ لوگ دور دور سے آ رہے تھے۔ جو بھی آتا مایوس آتا اور جب جاتا تو اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی۔ یہ نظارہ دیکھ کر اورنگزیب کے بندے دنگ رہ گئے۔ اورنگزیب نے یہ سن کر فیصلہ کیا کہ وہ خود عام لباس میں جا کر دیکھے گا۔ جب اورنگزیب وہاں پہنچا تو حضرت جین الدین شیرازی نے بنا دیکھے ہی کہا، آئیے شہنشاہ، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر اورنگزیب کے قدم تھم گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کون ہوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ حضرت نے مسکرا کر جواب دیا، جو دلوں کی باتیں جانتا ہے اس کے لیے چہرہ دیکھنا ضروری نہیں۔ اورنگزیب نے کہا، اگر آپ واقعی میں روحانی طاقت رکھتے ہیں تو مجھے ثابت کر کے دکھائیے۔ حضرت جین الدین نے کہا، صبر کیجئے، وقت ہی سب کچھ ثابت کرے گا۔ اسی بیچ ایک نابینا شخص ان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں سالوں سے اندھیرا تھا۔ اس نے کہا، حضور، مجھے شفا چاہیے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دعا کی۔ چند لمحوں میں اس شخص کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ یہ دیکھ کر اورنگزیب کا دل دہل گیا۔ اورنگزیب نے جھک کر کہا، آپ کا مقام یقیناً بہت بلند ہے، مجھے معاف کیجیے کہ میں نے آپ کو آزمانے کی کوشش کی۔ حضرت نے کہا، شہنشاہ، اصلی حکومت تخت پر نہیں، دلوں پر ہوتی ہے۔ اورنگزیب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اورنگزیب کی بے یقینی ابھی بھی پوری طرح نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک قاتل کو بھیجا کہ وہ حضرت کو مار ڈالے۔ جب قاتل وہاں پہنچا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حضرت نے کہا، بیٹا، گناہوں کی طرف نہیں، رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ قاتل نے اسی وقت توبہ کر لی۔ یہ سن کر اورنگزیب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، جو دلوں پر اس طرح راج کرتا ہے وہ یقیناً خدا کا دوست ہے۔ آج بھی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں
दिलों में असर पैदा करने में है। जो दिलों को जीत लेता है वही असली बादशाह है। एक दिन एक गरीब औरत हजरत जैनुद्दीन शिराजी के पास आई और बोली, हुजूर, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, घर में एक दाना नहीं। हजरत ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी, अल्लाह पर यकीन रखो, जाओ, घर जाओ और तंदूर देखो। वो गरीब औरत घर गई तो देखा कि तंदूर गर्म है और रोटियां मौजूद हैं। ये देखकर वो दंग रह गई। इस खबर ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। कुछ ही दिन बाद एक और वाकया हुआ जिसने औरंगजेब को पूरी तरह से बदल दिया। एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चे की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस औरत की चीखों ने वहां मौजूद हर शख्स को रुला दिया। हजरत जैनुद्दीन ने उसे देखा और एक घूंट पानी पिलाने को कहा। जैसे ही बच्चे ने पानी पिया, उसकी हालत में सुधार होने लगा। कुछ देर बाद बच्चा खेल कूद रहा था। ये देखकर औरंगजेब की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, ऐसी रूहानी ताकत सिर्फ खुदा के नजदीकी बंदों को ही मिलती है। औरंगजेब आलमगीर का दिल अब भी एक तड़प में था। हजरत सैयद जैनुद्दीन शिराजी से मुलाकात के बाद उनके दिल में जो सुकून की रोशनी आई थी वो तो थी, मगर इश्क़ इलाही की प्यास और बढ़ चुकी थी। वो अब और जानना चाहता था और सूफी बुजुर्गों की दुआओं का तलबगार बन चुका था। एक दिन दरबार में किसी ने औरंगजेब से कहा, हुजूर, अगर आप दिल का चैन और रूह की तसल्ली चाहते हैं तो आपको हजरत शाह कादिर वली से मिलना चाहिए। वो एक ऐसे वली हैं जिनकी दुआ से पत्थर में भी जान आ जाती है। औरंगजेब के दिल में एक नई हलचल हुई। शाह कादिर वली का नाम सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुरंत सफर की तैयारी करो, मैं खुद उनके दर पर जाऊंगा। जब औरंगजेब शाह कादिर वली के दरगाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सादगी का एक अलग ही नजारा था। न शानो शौकत, न दौलत का जिक्र। लोग फटे कपड़ों में भी इतने खुश कि मानो सारी कायनात उनके कदमों में हो। शाह कादिर वली एक पेड़ के नीचे बैठे जिक्र ए इलाही में मशगूल थे। जब औरंगजेब उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने बिना आंखें खोले कहा, शहंशाह, जब इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता तभी उसे सब कुछ मिल जाता है। औरंगजेब दंग रह गए। उन्होंने कहा, हजरत, आपने मेरी रूह की बात कैसे जान ली? शाह कादिर वली मुस्कुराए और बोले, दिल का रास्ता जुबान से नहीं, रूह से गुजरता है। बातों बातों में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को रुला दिया। एक औरत एक मुरझाया हुआ गुलाब लेकर आई और कहा, हुजूर, ये फूल मेरी अमानत है। मेरी बेटी ने इसे तोड़कर कहा था कि जब तक ये ताज़ा रहेगा मैं जिंदा रहूंगी। अब ये मुरझा गया है और मेरी बेटी भी बीमार है। शाह कादिर वली ने उस फूल को देखा, उसकी पंखुड़ियों को अपने हाथ में लिया और दुआ की। चंद लम्हों में वो फूल ताज़ा हो गया और उसी वक्त खबर आई कि उस औरत की बेटी की तबीयत भी ठीक हो गई। औरंगजेब ने पूछा, हजरत, आप ये करामत कैसे करते हैं? शाह कादिर वली ने कहा, यह कोई करामत नहीं, ये इश्क़ इलाही का असर है। जब इंसान का दिल हर एक से मोहब्बत करे और उसके लबों पर दुआ हो तो कुदरत भी उसकी आवाज सुनती है। उस दिन औरंगजेब की सोच हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, मुझे आज समझ में आया कि एक शहंशाह होना बड़ी बात नहीं, बड़ा वो है जो दिलों पर राज करे। शाह कादिर वली ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा तख्त तुझे ताकत दे सकता है मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के लिए तुझे बंदों से इश्क करना पड़ेगा। औरंगजेब ने उस दिन अपने ताज को नहीं, अपने दिल को सजाया। उनकी आंखें नम थीं मगर दिल में एक अजीब सुकून था। वो समझ चुके थे कि असली दौलत न सोना है न चांदी,
असली दौलत वो है जो दिलों में बसती है। ये दास्तान सिर्फ औरंगजेब की नहीं, हम सब की है। जो भी तख्त व ताज के पीछे भाग रहा है, उसे एक दिन समझना होगा कि दिल का सुकून सिर्फ मोहब्बत और इश्क ए इलाही में है। शाम के वक्त एक अंधे बुजुर्ग शाह कादिर वली के पास आए और कहा, हजरत, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या मेरी भी जिंदगी में उजाला हो सकता है? शाह कादिर वली ने उनका हाथ थामा और दुआ की। कुछ ही पल बाद बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। वो रो पड़े और कहा, आज मैंने खुदा को देख लिया। औरंगजेब ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि शाह कादिर वली के लिए मोजिजे करना नहीं बल्कि मोहब्बत बांटना ही मकसद था। अगले दिन औरंगजेब शाह कादिर वली से रुखसत लेने के लिए पहुंचे। जाते जाते उन्होंने कहा, हजरत, कोई ऐसा मौजिजा दिखाइए जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस जाए। शाह कादिर वली ने एक बंजर जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ, वहां जिक्र इलाही करो। औरंगजेब ने वजू किया और दुआ में डूब गए। कुछ ही देर में आसमान पर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बंजर जमीन देखते ही देखते हरियाली में तब्दील हो गई। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे आज समझ में आया कि जब दिल में मोहब्बत की बारिश होती है तो बंजर रूहें भी जिंदा हो जाती हैं। औरंगजेब की रूह अब रूहानियत की महक से सराबोर हो चुकी थी, मगर तलब अब भी थी। जैसे प्यासे को दरिया का किनारा दिख तो जाए पर पानी छूने की इजाजत न मिले। वो बार बार शाह कादिर वली की चौखट पर आता और हर बार एक नया सबक लेकर लौटता। एक दफा का जिक्र है कि बादशाह के पास 2 गांवों के लोग आए। उनका झगड़ा मस्जिद की मिल्कियत को लेकर था। एक कहता था, यह हमारी है, दूसरा कहता था, यह हमारी है। बादशाह के फैसले से पहले उन्होंने शाह कादिर वली की पनाह ली। शाह कादिर वली ने जमीन पर अपनी उंगली से एक लकीर खींची और कहा, मस्जिद खुद बताएगी कि वो किसकी है। लोग हैरान हुए। शाह कादिर वली ने दुआ की और कहा, जो सच्चा है मस्जिद की दीवार उसकी तरफ झुकेगी। कुछ लम्हों में दीवार झुक गई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। औरंगजेब भी यह देखता रहा। शाह कादिर वली ने कहा, मस्जिद पत्थरों से नहीं, नीयत से बनती है। जिसकी नीयत साफ होगी वही उसका हकदार होगा। औरंगजेब की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, आज जाना कि इंसाफ फतवों से नहीं, दिल से होता है। एक और वाकया ऐसा था जो लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है। एक गरीब मछुआरा अपनी बीमार बेटी को कंधे पर उठाए शाह कादिर वली के पास पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल था। कहा, हुजूर, मैंने सारी दौलत लुटा दी मगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। क्या अब खुदा भी मेरा नहीं? शाह कादिर वली ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया, माथे पर हाथ रखा और कहा, खुदा तुझसे दूर नहीं, तू ही खुदा से दूर हो गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद बच्ची ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब्बा, मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक पड़ी। औरंगजेब ने यह करिश्मा देखा और कहा, ऐसी हुकूमत मैंने आज तक नहीं देखी। रात का सन्नाटा था। चांद की रोशनी दरगाह की दीवारों पर गिर रही थी। औरंगजेब शाह कादिर वली के पास आए और कहा, हुजूर, क्या मेरा दिल भी कभी इतना पाक होगा? शाह कादिर वली ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तेरा ताज तेरे सिर पर नहीं तेरे दिल में होगा तब तेरा दिल पाक हो जाएगा। उस रात औरंगजेब ने अपना ताज उतारकर जमीन पर रख दिया, चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ खुदा, मुझे भी मोहब्बत करना सिखा दे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।